Welcome back, lovely students. So again we are back with our next exercise of the chapter addition and subtraction. I hope you all have solved the previous exercise, that was exercise 3E. So now exercise 3F is on the word problems related to addition and subtraction both. So now in these word problems there could be addition and subtraction both in the same problem. So we'll start solving. So this exercise have 7 questions, 7 word problems, and we'll start solving from first one and understand the question first, the language, and then we'll try to solve all the questions. So let us start. Question number 1. A man bought a plot of land for rupees 37,899. बॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड, यानी कि ये हो गया लैंड का कॉस्ट प्राइस. उसने एक लैंड खरीदा जिसकी कॉस्ट थी 37,899. सो दिस इज कॉस्ट प्राइस ऑफ लैंड. सो व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेटमेंट? कॉस्ट प्राइस ऑफ लैंड इज इक्वल टू रुपीज 37,899 and sold it for rupees 45,362. sold it मतलब सेलिंग प्राइस, बेचने का प्राइस. बॉट मतलब खरीदने का प्राइस, इतने में उसने खरीदा. एंड सोल्ड द लैंड, सेलिंग प्राइस ऑफ लैंड रुपीज 45,362. मतलब उसने खरीदा कम में और बेचा ज़्यादा में, तो ये उसका हो गया प्रॉफिट. ठीक है, खरीदा उसने कम में था और बेचा ज़्यादा में है, तो ये हो गया प्रॉफिट. सो हाउ मच प्रॉफिट डिड ही अर्न, कितना प्रॉफिट उसने अर्न किया. नाउ प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इज माइनस कॉस्ट प्राइस. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सो सेलिंग प्राइस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड subtraction will always be like this, that greater number will be placed before and a smaller number will be placed afterwards. So selling price minus cost price, so 45,362 minus 37,899. Again you will draw the place value chart, take the help of this chart, and then you will subtract column wise. So in this way your answer will be 7,463. So that was his profit. He earned the profit of rupees 7,463. Okay, now let us come to another question. So next question is, by how much is 89,720 greater than by how much 98,720 greater than 89,293. मतलब ये नंबर इस नंबर से कितना बड़ा है. तो कितना बड़ा है मतलब आप इसका क्या निकालेंगे? डिफरेंस. सो डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन. ओके, आपको ये निकालना है कि दिस नंबर इज हाउ मच ग्रेटर देन दिस नंबर. ये नंबर इस नंबर से कितना बड़ा है. सो यू विल फाइंड द डिफरेंस एंड डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्ट. सो अगेन you will take the help of place value chart. Very important, the first step in solving any sum of subtraction or addition. So 98,720 minus 89,293. Now your answer will be, you will subtract column wise, your answer will be 9,427. So 98,720 is greater than 89,293 by 9,427. You will write the answer at the end of the word problem. In every word problem you have to write the answer. जो आपसे पूछा गया है वो आप लास्ट में हाईलाइट करके या अंडरलाइन करके लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. The diameter of Saturn the planet. Okay, all of you know the diameter of Saturn. So Saturn का diameter दिया हुआ है. ठीक है, diameter of Saturn is about 1,19,296 kilometers. Since the planets are very big, तो उसका diameter हम kilometers में measure करते हैं. So diameter of Saturn is about 1,19,296, and then that of Neptune, that is another planet, is about 49,493 kilometers. So we can see this one is greater. Saturn is greater, Neptune is smaller.
हाउ मच ग्रेटर इज द डायमीटर ऑफ सैटर्न देन दैट ऑफ नेपट्यून. सपोज दिस इज सैटर्न, ओके, नॉट वेल ड्रॉन बट ओके, एंड दिस इज नेपट्यून. तो इसकी डायमीटर, सैटर्न की डायमीटर नेपट्यून से कितनी बड़ी है? अगेन द डिफरेंस वी हैव टू फाइंड आउट, सो वी विल सब्ट्रैक्ट. तो सब्ट्रैक्ट द डायमीटर ऑफ Saturn, sorry, subtract the diameter of Neptune from the diameter of Saturn. So 1,19,296 minus 49,493. You will subtract column wise and the answer you will get 69,803. So what will be the answer? Diameter of Saturn is greater than diameter of Neptune by 69,803 kilometers. So you have to find the difference. Okay. Next question. Now this question, as you can see already here, this question is have both the operations, plus also and minus also, addition also and subtraction also. Now let us see. Anas balance on 1st September in his bank account was rupees 49,500. So this was his balance on 1st September in the bank. Okay, so this was his balance. So his balance on 1st September was 49,500. Okay. Then okay, he withdrew rupees 89,635 in the month of September. Withdrew मतलब होता है पैसे निकालना. बैंक अकाउंट में उसके इतने पैसे थे तो उसमें से 8,635 उसने सितंबर में निकाले और 5,013 रुपीज़ उसने अक्टूबर में निकाले और 19,820 नवंबर में निकाले. तो अकाउंट में पैसे हैं, ठीक है, बैंक अकाउंट में उसके पैसे हैं 49,500. अब उसने पहले सितंबर में निकाले, फिर अक्टूबर में निकाले और फिर नवंबर में निकाले. अब व्हाट इज़ द बैलेंस ऑन 1st दिसंबर? जब नवंबर तक उसने पैसे निकाल लिए तो दिसंबर में उसके पास अकाउंट में कितने पैसे बचे होंगे? दैट यू हैव टू फाइंड आउट. सो फॉर दैट क्या करना होगा? पहले हम जितने उसने टोटल विड्रॉ करें यानी कि निकाले हैं उसको ऐड करेंगे. टोटल अमाउंट उसने कितना निकाल लिया है और फिर उसके पास जितने थे उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. यू गेटिंग द पॉइंट? First we will add all the amount that he have withdrawn and then we will subtract and we will get the answer. Okay, so let us see how to solve this. Anil's balance on 1st September rupees 49,500. Amount he withdrew in September, then October and then in November. तीनों अमाउंट आपने लिखे हैं यहाँ पे जो उसने विड्रॉ करे हैं एंड देन टोटल अमाउंट ही विड्रॉन. टोटल उसने निकाले कितने, सबके अलग अलग दिए हुए हैं तीनों मंथ के. आपको कंबाइनली इसको निकालना है कि टोटल उसने निकाल कितने लिए, तभी आपको पता चलेगा कि इसमें से बचे कितने. तो आपने इन तीनों को ऐड कर दिया कॉलम वाइज ऑफ कोर्स जैसे आप कर रहे थे. सो इट विल बी 33,468. इतना अमाउंट उसने इतने में से 3 महीने में निकाला. नाउ बैलेंस लेफ्ट आफ्टर द विड्रॉ. सारे विड्रॉ के बाद बैलेंस दिसंबर में कितना बचेगा? सो बचेगा मतलब लेफ्ट मीन्स सब्ट्रैक्ट. नाउ यू विल सब्ट्रैक्ट जो टोटल अमाउंट था उसमें से विड्रॉन को माइनस कर देंगे. सो यू विल गेट द आंसर 16,032 विल बी लेफ्ट इन हिज अकाउंट आफ्टर ऑल द विड्रॉ. ओके, सो दिस हैव 2 स्टेप्स. फर्स्ट वन इज एडिशन. एडिशन करके आप टोटल अमाउंट विड्रॉन निकालेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करके आप बैलेंस जो बचा वो निकालेंगे. नेक्स्ट वन, 2 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड एन इलेक्शन. 2 कैंडिडेट्स थे इलेक्शन में. 83,457 वोट्स वर पोल्ड इन ऑल. टोटल वोट्स दिए हुए हैं कितने पोल हुए? 49,682 वोट्स वर पोल्ड इन फेवर ऑफ कैंडिडेट ए.
तो कैंडिडेट ए को कितने वोट्स मिले? 49,682। 2,974 वोट्स वर फाउंड इनवैलिड। इतने वोट्स इनवैलिड थे, ठीक है। सो हाउ मेनी वोट्स वर पोल्ड इन फेवर ऑफ कैंडिडेट बी? टोटल वोट्स दिए हैं, ए के वोट्स दिए हैं और इनवैलिड वोट्स दिए हैं। अब आपको निकालना है कि बी के फेवर में कितने वोट्स पोल हुए, ठीक है। सो टोटल वोट्स इन फेवर ऑफ कैंडिडेट ए एंड इनवैलिड, ए और इनवैलिड वाले को हम ऐड करेंगे और टोटल वाले से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कैंडिडेट बी को कितने वोट्स मिले। तो पहले हम ये टोटल वोट्स निकालेंगे कैंडिडेट ए के और इनवैलिड के, मतलब जो ये टोटल वोट्स हैं ये तीन चीज़ें इसके अंदर होंगी। टोटल में जैसे ये टोटल वोट्स हैं तो इसमें 3 चीज़ होंगी, कैंडिडेट ए के वोट्स होंगे, बी के भी होंगे और जो इनवैलिड हो गए वो भी होंगे। तो आपको ये गिवन है, ए के गिवन है और इनवैलिड के गिवन है, आपको निकालने हैं बी के वोट्स। तो इसको निकालने के लिए आप इसको और इसको ऐड करेंगे, ए के और इनवैलिड को, और उसको टोटल में से माइनस कर देंगे। देन यू विल गेट द नंबर ऑफ वोट्स ऑफ कैंडिडेट बी। तो आपने ये दोनों ऐड किए, आंसर विल बी 52,656 और फिर टोटल वोट्स में से इस वाले फिगर को टोटल जो आपने बी के वोट्स और इनवैलिड निकाले उसको आपने माइनस कर दिया। सो यू विल गेट द आंसर 30,801। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन द इलेक्शन एंड बाय हाउ मेनी वोट्स। अब आपको ए के भी वोट्स पता हैं, बी के भी पता हैं, तो आपको मालूम है किसके ज़्यादा हैं। ए के ज़्यादा हैं 49,682 और बी के थे 30,801। तो आप माइनस करेंगे तो आपको दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा। सो कैंडिडेट ए वॉन द इलेक्शन बाय 18,881 वोट्स, मतलब आपको डिफरेंस निकालना था। So this question is lengthy one, so it has 3 parts. So solve it very carefully. Next question. What must be added to 79,415 to make 2,40,000? Up 2,40,000 here is written in words, so definitely you have to convert it into digits. So इस नंबर में 79,415 में हम कितना ऐड करेंगे कि वो 2,40,000 बन जाए। जब भी आपका क्वेश्चन दो चीज़ों का सम दे रखा है क्वेश्चन में और एक नंबर दिया हुआ है और आपको दूसरा बताना है, अगर वो सम दिया हुआ है तो आप सब्ट्रैक्ट करके दूसरा नंबर निकालेंगे और अगर डिफरेंस दिया हुआ है तो ऐड करके निकालेंगे। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। अगर दो नंबर्स का सम दिया हुआ है, ठीक है, और एक नंबर दिया हुआ है तो आप हमेशा दूसरा नंबर माइनस करके निकालेंगे, यानी अपोजिट। और अगर डिफरेंस दिया है और एक नंबर दिया है और दूसरा नंबर निकालना है तो आप ऐड करके निकालेंगे। तो इसमें एडेड लिखा हुआ है, सो वी विल सब्ट्रैक्ट हियर। सो बड़ा कौन सा है इसमें से? 2,40,000। तो 2,40,000 माइनस 79,415। सो यू विल फाइंड द डिफरेंस with the help you will subtract with the help of place value charts only. Okay, so answer will be 1,60,585. तो इस नंबर में इतना और ऐड होगा तब वो बन जाएगा 2,40,000। अगेन देयर इज डिफरेंस कमिंग हियर, डिफरेंस निकालना है। 1,60,585 must be added to 79,415 to make 2,40,000। उसको 2,40,000 को बनाने के लिए आपको इतना ऐड करना पड़ेगा। Now last question of your exercise. The sum of two numbers is 6,49,712. Again this is given in words, so you will convert it into number. One of the number is 4,93,700. So one number is given. अभी मैंने बताया whenever sum is given and one number is given you will subtract, you will do opposite। और अगर यहाँ difference दिया होता और one number दिया होता तो आप add करते, opposite, find the other number। So sum of numbers, one number, so other number will be by subtracting। So you will subtract here, take the help of place value charts। So answer will be 1,56,012।
So this will be, the other number is 1,56,012. Okay, now your homework is solve exercise 3F in your notebooks, and then we'll come back with another exercise of your chapter, that is last exercise of your chapter. Thank you.